Today we are going to discuss test number 13, which is chapter number electromagnetism and electronics. Let's move to MCQs. The first MCQ is a current carrying straight conductor is placed in magnetic field perpendicular to it. The force experienced by the conductor is अच्छा, the force का हमारे पास फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा. अब थीटा यहाँ पे हमारे पास 90 होगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास 90 डिग्री होता है, तो साइन 91 हो जाएगा और एफ क्या हो जाएगा हमारे पास BIL. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, एफ इक्वल टू BIL. MCQ number 2. Total number of magnetic lines of force passing normally through unit area is called. अच्छा, इसको हम magnetic flux कहते हैं. The total number of magnetic lines of force passing normally through unit area is called magnetic flux. Option A is correct. MCQ number 3. Two free parallel straight wires carrying currents in opposite direction. अच्छा, तो दो वायर्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हैं, तो वो क्या करेंगी, ये रिपेल करेंगे आपस में एक दूसरे को. देखें, अगर हम यहाँ पे देखें दो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी ऑपोजिट है, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर देंगी. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. MCQ number 4. A solenoid has n turns per unit length and current I flow through it. The magnetic field of the solenoid. तो इसका जो है ये फार्मूला है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. MCQ number 5. Electric current generates. Electric current magnetic field generate करते हैं, so option C is correct. Number 6. A long solenoid has magnetic field strength of 3.14 into 10 raised by minus 2 Tesla inside it when a current of 5 ampere passes through it. The number of turns in 1 meter of the solenoid is. अच्छा, हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं. इसका जो फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, और n जो है वो उसको रिप्रेजेंट भी किया जाता है N इक्वल टू N ओवर L. तो वहाँ पे हम n की जगह N ओवर L, कैपिटल N ओवर L पुट करते हैं. और देखिए यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट की हैं और हमने बाकी सॉल्व किया है. कुछ भी इसमें नहीं है. पाई की वैल्यू पुट की है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. पाई की वैल्यू सॉल्व की है, पाई की वैल्यू ऐड की है, तो वो कट हो गई है. बाकी हमने सिर्फ 10 की पावर्स जो हैं वो सॉल्व की हैं और हमारे पास आंसर आ गया 5000 न्यूटन. दिस इज़ वेरी इजी वे. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 5000 टर्न्स. MCQ number 7. The magnetic field is represented with magnetic lines of force. Magnetic field हमारे पास magnetic lines of force represent की जाती हैं. Option C is correct. MCQ number 8. Two magnetic lines of force. जो दो magnetic lines होती हैं force की, वो कभी भी intersect नहीं करती एक दूसरे को, तो option B is correct. Do not intersect each other. MCQ number 9. The SI unit of magnetic field strength is. magnetic field strength B का जो SI unit है वो टेस्ला है, और टेस्ला इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, टेस्ला. MCQ number 10. The closed path taken for computation of magnetic flux density is referred to. इसको एम्पियर्स लॉ कहते हैं हम. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. MCQ number 11. The magnetic field inside a solenoid is. Magnetic field हमारे पास solenoid के अंदर यूनिफॉर्म होती है, so option A is correct. MCQ number 12. If a magnetic field in a magnetic field the charge at rest experiences. जो चार्ज रेस्ट पे होता है उस पर कोई फोर्स नहीं लगती है, so option C is correct, no force. MCQ number 13. A diode can be used as. Diode हम यूज़ कर सकते हैं as a rectifier भी, so option D is correct, as a rectifier. MCQ number 14. If p-type material of the PN junction is connected with positive terminal of the battery and n-type with the negative terminal of the battery, it is said to be. अच्छा, जब P जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, P इज़ पॉजिटिव एंड N इज़ नेगेटिव, सो वो फॉरवर्ड बायस होता है. और अगर इसी तरह ऑपोजिट कर लें कि N पॉजिटिव हो और P नेगेटिव हो, तो वो रिवर्स बायस होता है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, फॉरवर्ड बायस्ड. MCQ number 15. If we use two diodes and a center tape transformer, we will get. Option C is correct, full wave rectifier. अगर हम दो डायोड यूज़ करेंगे और सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर होगा तो हमारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन हमें मिलेगी.
MCQ number 16. The magnitude of a magnetic force F acting on a charge Q with when it moves with a velocity v through a magnetic field B is given by. तो इसको हम कहेंगे F equal to Q VB sin theta. This is the formula of force in the magnetic field. So F equal to Q VB sin theta. MCQ number 17. The direction of magnetic field at a point on the magnetic lines of force can be taken along. जो इसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की इन मैग्नेटिक फील्ड में वो टेंजेंट पे बनाई जाती है. टेंजेंट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट बनेगा उससे हम डायरेक्शन ले लेंगे. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. MCQ number 18. The direction of magnetic field as given by Fleming's rule for the solenoid is along. Option B is correct. The axis of solenoid. Axis of solenoid के across होती है direction magnetic field. The rectification is the process in which conversion takes place from. Rectification में हमारे पास conversion होती है AC to DC. AC voltage आता है तो वो DC में convert हो जाता है. So option B is correct. MCQ number 20. The circuit which is used to smooth the output voltage of the full wave rectification is known as filter. So option D is correct. जो सर्किट यूज़ किया जाता है स्मूथ करने के लिए, जो आउटपुट हमें मिलता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन से, उसको फिल्टर कहते हैं. MCQ number 21. In a half wave rectifier the RMS value of AC component of the waves. अच्छा, ये हमेशा जो है वो मोर देन होती है DC से. DC वैल्यू जो हमें दी होती है उससे ज़्यादा होती है इसकी जो AC कंपोनेंट की वैल्यू है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. MCQ number 22. The direction of magnetic lines of force is given by. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से गिवन की जाती है. हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. MCQ number 23. A solenoid 15 cm long has 300 turns of wire. Find the number of turns per unit length. अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जैसे n इक्वल टू n ओवर l भी हो सकता है. तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 300. अब यहाँ पे 0.15 हमने इसलिए पुट किया, ये सेंटीमीटर में, हमें मीटर में चाहिए. तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा. तो हम 300 ओवर 0.15 इसको जब सॉल्व करेंगे तो 200 टर्न्स हमारे पास आंसर आ जाएगा. सो 2000 टर्न्स पर मीटर हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है. MCQ नंबर 24. करंट फ्लोज इन. फॉरवर्ड बायस जब होती है तो तब करंट फ्लो होता है. जब P इज़ पॉजिटिव एंड N इज़ नेगेटिव तो फॉरवर्ड बायस होगी और करंट फ्लो करेगा. फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. MCQ number 25. In a half wave rectifier the load current flows for. हाफ वेव रेक्टिफायर में जो लोड करंट वो जाता है वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाता है. जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा इनपुट सिग्नल का तो तब हमारे पास लोड करंट फ्लो करेगा. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. MCQ number 26. A metal rod of length 1 meter is moving at a speed of 1 meter per second in the direction making an angle of 30 degrees with 0.5 Tesla magnetic field. The EMF produced is EMF का फॉर्मूला VBL sin थीटा. सो sin 30 यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ, sin 30 पुट किया. V1 है, B हमारे पास 0.5 है एंड L इज़ 1. सो देखिए यहाँ पे मैंने sin थीटा की वैल्यू पुट किया, sin 30 की sin 30 1/2 होता है. 1/2 पुट कर दिया और 0.5 है तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए नीचे 10 लगाया. बाकी कटिंग करके सिंपल सा किया है. तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 आया. तो जब 1/4 को हम डिवाइड करेंगे 4 को 1 से करेंगे 0.25 वोल्ट आ जाएगा. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. 0.25 वोल्ट. MCQ नंबर 27. द आउटपुट फ्रॉम अ फुल वेव रेक्टिफायर इज़. जो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट आता है हमारे पास वो पल्सेटिंग यूनिट डायरेक्शनल वोल्टेज होता है. पल्सेट कर देता तो स्मूथ नहीं होता. उसको स्मूथ करने के लिए हम फिल्टर यूज़ करते हैं. ऑप्शन 28. 5.0 into 10⁻⁻6 charge coulomb charge moves perpendicularly across a magnetic field with a strength of 0.5 Tesla. If the charge experiences a force of 10 Newton, what is the speed of the moving charge? So हम इसको देखते हैं. इसके लिए हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा F equal to Q VB sin थीटा. अब V अगर हमने निकालना है तो F के नीचे सारे आके डिवाइड हो जाएंगे. V के बजाय से जा रहे सारे Q B sin थीटा. तो देखें F हमारे पास 10 है, Q हमारे पास 5 × 10⁻6 है एंड B इज़ 2.5. अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलरली है. परपेंडिकुलरली के लिए sin 90 होगा. sin 90 जो है 1 हो जाता है. अब हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे और देख सकते हैं आप यहाँ पे सिंपल सी कटिंग हुई हुई है और हमारे पास एंड पे आंसर 8 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है. सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है. 8 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड.
MCQ number 29. An electron experiences a force F as it moves across a magnetic field when its speed is double and the magnetic field is triple. The force on the electron is, देखें F जो F इक्वल टू वी बी साइन थीटा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के साथ भी और B के साथ भी. तो V क्या हो रहा है हमारे पास, डबल हो रहा है, और B 3 टाइम्स हो रहा है. 3 2 6 6 V B हो जाएगा. तो F प्राइम क्या हो जाएगा 6F. तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन C करेक्ट है, 6F. MCQ number 30. A substance which behaves like a magnet in the presence of a strong field is called. इनको फेरोमैग्नेट्स कहते हैं, जो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं. अगर हम उनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, आगे वो मैग्नेट होते नहीं है लेकिन बिहेव एज ए मैग्नेट करते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फेरोमैग्नेट्स. MCQ number 31. Maximum force is experienced by a charged particle when it moves. जब परपेंडिकुलरली मूव कर रहा होता है, फील्ड से परपेंडिकुलर होता है, तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स होती है, क्योंकि जब उस वक्त साइन थीटा जो होता है वो 90 होता है और साइन 91 होता है. तो इसलिए मैक्सिमम जो है फोर्स वो तब लगती है जब परपेंडिकुलरली चार्ज परपेंडिकुलरली टू फील्ड मूव कर रहा हो. MCQ number 32. Magnetic field lines in the middle of the solenoid are मिडिल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पैरेलल होते हैं एक्सिस से. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. MCQ number 33. Dash behaves like a stretched rubber string which tends to contract longitudinally and expand laterally. So magnetic lines of force behaves like a stretched rubber string which tend to contract longitudinally and expand laterally. Option D is correct. MCQ number 34. The correct expression of Lorentz force is, तो F equal to F E plus F B होता है. तो F E equal to Q E and F B equal to Q V cross B. So B option is correct. Q E plus Q V cross B. MCQ number 35. Common type of rectification is, common type की दोनों है, वो हाफ भी यूज़ होती है और फुल भी. So option C is correct, both A and B. And the magnetic lines of force are, magnetic lines of force होती हैं वो सर्कुलर में होती हैं. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन एम्पेयर, 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ये हमारे पास 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल होता है. MCQ number 38. The magnetic flux is given by, ये फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अलॉन्ग एक्सिस ऑफ हेलिक्स इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स. जो डिस्टेंस एक्सिस पे जो हेलिक्स का एक्सिस होता है उस पर डिस्टेंस कवर कर रहा होता है उसको हम पिच ऑफ हेलिक्स कहते हैं, उस पाथ को. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. Dash was the first to note the presence of magnetic force in a wire in which currents are flowing. So वो ऑस्ट्रिट था जिसने सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स को वायर में किया था. इसको पता चला था कि मैग्नेटिक फोर्स होती हैं, करंट जिसमें फ्लो कर रहा है उसमें मैग्नेटिक फोर्स होती है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडेज टेस्ट. MCQ number 38. The magnetic flux is given by, ये फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अलॉन्ग एक्सिस ऑफ हेलिक्स इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स. जो डिस्टेंस एक्सिस पे जो हेलिक्स का एक्सिस होता है उस पर डिस्टेंस कवर कर रहा होता है उसको हम पिच ऑफ हेलिक्स कहते हैं, उस पाथ को. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. Dash was the first to note the presence of magnetic force in a wire in which currents are flowing. So वो ऑस्ट्रिट था जिसने सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स को वायर में किया था. इसको पता चला था कि मैग्नेटिक फोर्स होती हैं, करंट जिसमें फ्लो कर रहा है उसमें मैग्नेटिक फोर्स होती है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडेज टेस्ट.